Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. It is Lisbon Day 2 vlog. सुबह हम लोग निकले 11 बजे के करीब बीएनबी से, क्योंकि पहली रात हम लेट तक बातें करते रहे थे, फिर उस दिन ट्रैवलिंग भी किया था, तो सुबह को सभी लोग थोड़ा सा लेट उठे। इसके बाद चाय वगैरह पी के नहा धो के रेडी होके हम निकले। तो काइंड ऑफ हमने ब्रंच ही किया था। बहुत अच्छे ऑप्शन थे, बीएनबी से ये ज़्यादा दूर नहीं था। आई थिंक मारिया करके कोई कैफ़े था जिसमें एवोकाडो टोस्ट और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी हर किसी के टेस्ट बड के हिसाब से। तो अच्छे से हमने जो है यहाँ पे हैवी ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद हम लोग निकले, कुछ 5 से 7 मिनट की वॉक थी, और इसके बाद हमें टुक टुक लेनी थी, विच इज़ काइंड ऑफ ई रिक्शा, जिससे आपको बहुत अच्छा टूर मिलता है। पूरा सिटी वो आपको दिखा देते हैं। एंड लकीली हमारे जो टूर गाइड थे, जो हमारे टुक टुक के ड्राइवर थे, वो इंडिया से थे। आदित्य उनका नाम है और वो इंदौर से थे, एंड ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल। As I was explaining, right, that so it's the city of hills. So 6 hills got destroyed in the 1755 earthquake, 1st of November. So what happened afterwards was we have to rebuild the city. There was a guy who rebuilt the city, and now we have 3 different kind of tours here. This is the historical center. We covered 3 hills here. You will go to 3 different viewpoints. This is the highest viewpoint of the city. हम लोग 80% शहर देख सकते हैं वहाँ से, 150 meters above the sea level, बहुत highest viewpoint है। आप लोग ने नहीं देखा ना अभी? नहीं। ठीक है। We will go to 3 different viewpoints. ये कैथीड्रल है, oldest cathedral of Europe, one of the oldest cathedral. ये नोटर डेम जो है पेरिस का, उससे भी नोटर डेम से। ओके। तो ये 1148 में बना था, ये हम लोग देखेंगे, 3 viewpoints देखेंगे। ये नेशनल पैंथियन है, ऑलमोस्ट 300 years लगा था इसको बनने में, राइट? ऑलमोस्ट 4 generations ने मिलकर बनाया हमारी नेशनल पैंथियन। जैसे हमारा कैलाश टेम्पल है इन इंडिया, राइट? इट टुक 4-5 generations to make it. National Pantheon is really beautiful as well. So we'll also see this. This tour is typically, I don't know why Mohammed said 1 hour, but it takes 90 minutes, I would say. Okay. Because of course we have to stop everywhere. You will know about the history. It's worth it to do it in 90 minutes. Can I ask one thing? Will we have opportunities to get off? Yeah, of course. That's why it's gonna take 90 minutes because we're gonna get off. I'm gonna explain you the history about everything behind it, when it was built, who built it, and so on. So it's gonna take some time. We can take pictures and so on. It will be 90 minutes, okay? This tour. Then we have Belém. So Lisbon, I mean, we are all Indians, right? So our numbers and cities are different for us. Here, Lisbon is very small. They call the main city of Lisbon, and then metropolitan area of Lisbon. Metropolitan area of Lisbon में हम लोग 10 किलोमीटर we will go far, क्योंकि वास्को द गामा जो था वो पहला बंदा था यहाँ से जाने के लिए 1498 में, जिसने अफ्रीकन कोस्ट को क्रॉस किया था और इंडिया डिस्कवर किया था, राइट? तो जब वो गया था जिस पॉइंट से, वहाँ वो अटलांटिक ओशन है, जो लास्ट पॉइंट है रिवर। वी आर गोइंग टू, so we go through Belém because Belém has a lot to do with like all the thing happened in the 16th century, how they opened the spice trade route, if you know, in the 15th century, right? फिर वास्को द गामा वापस आया, फिर उन्होंने कुछ monuments बनाए थे. So there is a lot of history related to that as well, which we call Belém. This is not really Lisbon. It's the metropolitan area of Lisbon, where we go 10 kilometers far from the city under the bridge. It's a beautiful ride next to the river. And then we are going to cover a lot of places. Like, have you already tried pastel de nata? The egg tarts? Yeah, right? So it was invented. Yeah, we can try because it's part of the thing. It's from 1837, from 19th century. Monks ने मिल के ये डिश को बनाया था, और ये नेशनल ब्रेकफास्ट है पोर्चुगल का। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। हम लोग मॉन्यूमेंट ऑफ डिस्कवरी जेरोनिमस मोनेस्ट्री जाएंगे। मॉन्यूमेंट ऑफ डिस्कवरीज 1960 में बना था। एलेक्स फैक्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। आप लोग ने देखा एलेक्स फैक्ट्री? किसी ने इंटरनेट पे शायद पढ़ा होगा उसके बारे में। एलेक्स फैक्ट्री एक्चुअली एक टेक्सटाइल फैक्ट्री था अंटिल 19th सेंचुरी, और फिर वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट लोग आए पोर्चुगल से, और उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पे एलेक्स फैक्ट्री बनाया बेसिकली, विच इज़ अ लोकल मार्केट टुडे। हम लोग वो भी कवर करते हैं, बट दिस इज़ अ 2 hours। दोनों मिला के 3.5 hours। And then we have Spices Shop. I personally will say there's not much to see. The city got collapsed in the 1755 earthquake. All the hills got destroyed, and the thing we built afterwards we call the new town. So the new town is this. I mean, okay, if you take these two, we can pass by from there, and then I can still show you what was the new part. But I would say personally, these two are must visit. And even if you don't have like 3.5 hours, for sure you have to do the historical city. Because Belém is not really Lisbon, right? But Belém, it's really like has to do a lot at with least we will see everything. We don't mind 3.5 hours. So if you have 3.5 hours, what I'm gonna say personally is you're gonna fall in love with the city. I've been here for We 6 would years love to as a explore professional. everything. So we're gonna of the city, and trust me, you will know more than 70% of Portuguese people about their own country, because you are gonna have like Exactly. tuk-tuks. We're gonna stop everywhere. You will see a lot of monuments, and importantly, you will. I don't mind.
तो हमने 3.5 घंटे वाला टूर बुक किया था। 2 टुक-टुक हमने बुक करी थी क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग एक में ना आ पाते और आदित्य ने हमें रिकमेंड किया कि आप दिल्ली वाला से स्नैक ले लो। ये पास में ही थी शॉप क्योंकि 3.5 घंटे में ऑब्वियसली आपको बीच में भूख लगेगी ही क्योंकि आप बार-बार उतरेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे तो हो ही जाता है और फिर ये दिन भी बहुत ज़्यादा गर्म था। और ये इतनी अच्छी शॉप थी ना, यहाँ पे समोसे, चाट, इंडियन स्नैक्स आपको जितने चाहिए इवन दो बीएनबी में अगर आप कुक भी करना चाहते हैं तो सारी दालें मसाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। समोसे देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे बट फिर हमने सोचा कि इतनी गर्मी है एकदम तो खाए नहीं जाएंगे, रखेंगे कहीं ख़राब ना हो जाए। तो फिर यही डिसाइड किया कि टूर पूरा करके ये वाला और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पिक करेंगे समोसे और बीएनबी जाके अपना समोसे चाट ये सब कुछ खाएंगे। बाकी ये दिल्ली वाला शॉप बहुत अच्छी है। अगर आप लिस्बन में हैं देसी ट्रैवलर्स तो जाके यहाँ से आप चीज़ें ज़रूर लें। आई एम श्योर और भी होंगी बट ये हमारे बीएनबी के पास था। तो बस यहाँ पे टुक टुक में हम लोग सवार हो गए और अपने पहले पॉइंट की तरफ हम लोग चलने लगे। आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीबडी कि जब भी आप किसी सिटी का टूर लेना तो हमेशा गाइड बुक करें क्योंकि उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, आपको सारी हिस्ट्री पता लगती है। खुद से आप जाओगे ठीक है ये एक मॉन्यूमेंट है, ये चर्च है, आपने देख लिया लेकिन हिस्ट्री पता नहीं लगती है या फिर आप पूरी ही रिसर्च करके और पढ़ाई लिखाई जो है वो पूरी आप करके जाएं वहाँ से। हमें जो है आदित्य हमारा जो टुक टुक ड्राइवर ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, फ्लुएंट इन इंग्लिश, इन पोर्चुगीज एंड इन हिंदी। इंदौर से थे ये और इन्होंने अपना एक कार्ड भी दिया था जिसपे हमें रिव्यू लीव करना था इनके लिए और हमने रिव्यू दिया है। मैं इनका नंबर भी डाल दूंगी इन केस आप लिस्बन में हैं या फिर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर करना। नथिंग इज स्पॉन्सर्ड बट ही वाज रियली गुड, तो इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम हाईएस्ट पॉइंट गए थे जहाँ से ऑलमोस्ट पूरा लिस्बन दिखाई देता है। खूब सारे फोटोज़ हमने लिए। इसके बाद फिर हम पहुँचे इस एक चर्च में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जब आदित्य सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो मैंने सारी चीज़ें कोशिश करी है कि मैं एज इट इज़ ही रखूँ ताकि आपको उनके थ्रू पता लगे। बिकॉज मैं बताऊंगी तो मैंने सिर्फ एक बार सुना है, उनका डेली का काम है, वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री जानने में तो क्लिप्स मिस मत करना, आई एम श्योर आपको जो है वो पसंद आएगा। और चर्च बहुत ही ब्यूटीफुल था, वो हमने देखा, वहाँ पे भी फ़ोटोज़ ली। इसके बाद फिर हम एक और प्लेस पे पहुँचे। ये भी एक तरह का मॉन्यूमेंट था जहाँ पे जिन लोगों ने लिस्बन की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कुछ किया है, उनकी एक तरह से कब्रिस्तान बोल दो तो उनको ना यहाँ पे एक उनकी मेमोरियल हॉल टाइप है वो बनाया गया है। और ये बहुत ही सुंदर था। बाहर का जो व्यू था ना वो भी बहुत अच्छा था और रंग बिरंगे घर हैं चारों तरफ। A little bit, right? We know Cristiano Ronaldo, all of us, right? Cristiano Ronaldo last week made a big goal, like the important goal, where he made 9 goals in total, and now he's the second highest run scorer. But it took him 6 World Cup to make 9 goals. There was a footballer in the last century, 1966. His name was Eusebio. He was from Mozambique, because back in times they used to call the Portuguese Mozambique because they were colonized by the Portuguese people. So he was playing his whole life. He was like forced, let's say, to play for Portugal because Mozambique was like they were slaves, and he played his whole life for Portugal. And guess what, guys? 1966, his first FIFA, he brings alone by himself Portuguese team all the way to the semi-finals, which is the closest Portuguese people have reached. He alone by himself 9 goals in 10 games. He was a beast. He was the greatest footballer. In 2014, I don't follow football. I don't come from a football playing nation, but I love stories. That's my job, right? So I'm going to tell you why I say that Eusebio is the greatest story, because the person who helped me a lot with history, his name is Peter. He's from England. And I was talking with Peter one time, and I was like, Peter, tell me more about Eusebio, क्योंकि मुझे फुटबॉल के बारे में तो नहीं पता. Peter saying, Amalia Rodriguez has like typical Bollywood story. She came in the night, people start listening to her, and then later on in the next century, like in the next decade, she became such a great singer that she became the first woman to be buried here in 1999. Wow. She fight for the rights of the woman in the country. So there's so many beautiful people. Now imagine if something takes 300 years to build, it has to be beautiful, right? And I can guarantee you this is really beautiful from inside, and the best part is you can take a ticket for €7. You can also go all the way in the top, and then from the top you have a beautiful 360 degrees of Alphabet, second oldest neighborhood. And from the top आप लोग सबसे लंबा ब्रिज जो है यूरोप का वो भी देख सकते हैं, वाशो द गामा ब्रिज.
Basically, this is our national anthem, guys. Cool. एंड अगेन हमने फिर ढेर सारी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करी, सोलो भी ली और ग्रुप के साथ भी ली, और फिर से हम अपनी टुकटुक की रिक्शा में सवार हो गए और पूरे शहर को देखते हुए हम आगे के पॉइंट की तरफ बढ़े। और यहाँ की जो गलियां हैं ना वो सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। 700 tiles. The painter का नाम है आंद्रे, click जो कि Portuguese. I'll take picture from there. He's a Portuguese French painter. His name is Andre, and he made this beautiful painting in 2016. So it's a new world record, a single painting on 52,700 tiles. Gorgeous. It has multiple cities. It has Paris. I was just gonna say, is it like, yeah. So basically, all the cities which have made a big impact in Andre's life, he just put it in the painting. His life. उसके बाद हम इस पॉइंट पे आए और ना मुझे लिटरली सबके नाम याद नहीं है क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन ही डिफरेंट है। कोशिश तो करी थी याद रखने की, बट मुझे लगा कि गलत बोलने से बेटर है कि मैं ना ही बताऊं। बट यहाँ से जो है वो सी दिखाई देता है। खुशी वो सेइंग कि चलो दीपिका उधर से चल के आओ, फोटोज क्लिक करते हैं, बट यहाँ पे ये वीडियो बन रही थी तो मैं और पूजा गए और हम ऐसे ना बिल्कुल कैट वॉक करते हुए आए। तो इन्हीं चीजों में बस हम हंस रहे थे और हमने खूब इंजॉय किया। बस बिना बात हम हंसे ही जा रहे थे लिटरली पागलों की तरह। और बोगनविला यहाँ पे इतनी ज्यादा है ना कि चारों तरफ पिंक पिंक, बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद हम पहुंचे पिंक स्ट्रीट। ये आई थिंक यूरोप के मोस्टली हर शहर में होते हैं जब ये ऊपर अम्ब्रेलाज वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो है फिर हमने आइसक्रीम भी ली थी, खूब सारे फोटोज क्लिक करे। इसके बाद जो पुराना लिस्बन था उसका तो टूर कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे की तरफ चले, जैसे कि आदित्य ने फर्स्ट क्लिप में आपको एक्सप्लेन भी किया था, बलेम आई थिंक बोलते हैं, तो उधर की तरफ हम आए हैं। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपको देख के लगता है कि हाँ ये सारी चीजें न्यूली बिल्ट हैं। जो रोड है वो भी नए तरीके की हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो भी नए तरीके की हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज भी हैं। तो सब कुछ व्यू लेते हुए बनाने को तो ये वीडियो ना 1 घंटा लंबी हो जाती, जितना एक्सप्लेन हमें हमारे गाइड ने किया है उतनी सारी चीजें बताते बताते। बट मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा कवर करती हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप लोगों को अच्छा भी लगे। तो बताना जरूर कि आपको मेरा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद भी आ रहा है या नहीं। स्मॉल चैपल ऑफ संता मरिया। अब एक काम करते हैं, वास्को द गामा अगला बंदा है जो इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। और यदि वास्को द गामा पहला बंदा बनता है जो इफ ही बिकम्स द फर्स्ट पर्सन to cross this coast of Africa, I promise to the people I'm going to make a beautiful church of it. 1498 became the first time when Vasco da Gama crossed the coast of Africa, and he arrived for the first time in the south coast of India, and he discovered the route to India and Kochi, right? So then in 1498 he arrived. It took him 8 months to arrive, and when he came back in 1499 he became the first person who opened this spice trade route. Because जब वो वहाँ गया तो उसे पता चला कि इंडियन पीपल एक कुछ स्पेसिफिक पाउडर खाते हैं। इस पाउडर को जैसे ही फूड में डालो फ्लेवर चेंज हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे मैजिकल पाउडर, इसको आज स्पाइसेस के नाम से जानते हैं। जब स्पाइस ट्रेड जब उसने ओपन किया तो पोर्चुगल जस्ट बाय सेलिंग द इंडियन स्पाइसेस बिकेम द richest country on the planet, because then the western people start getting addicted to spices. And then in 1498 it became the history. When he came back, Manuel I was super happy because Portugal officially became the first country to cross the coast of Africa and arrive for the first time in the south coast of India. So when he came back, as he promised, he made this beautiful church in the 16th century, in the next century, as we know as the Church of Santa Maria. Now this church is made on a specific design. तो ये भी एक चर्च ही था और हमने देखा कि बहुत सुंदर इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ है। लेकिन जब गाइड ने हमें बताया ना कि अगर आप डिजाइन की डिटेलिंग देखेंगे तो उसमें रोप बनी हुई है, तब वो दिमाग को स्ट्राइक किया। तो क्योंकि ये सेलिंग से रिलेटेड था वास्को द गामा, तो उन्होंने जो है जितना भी डिजाइन बनवाया इस चर्च के ऊपर ना वो रोप की तरह बनवाया। तो आप क्लिप को ना पॉज करके देखना। इसके बाद सामने ही जो है ये बलम टावर है और यहाँ से जो है वो आपको सी दिखाई देता है। सामने जो है एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है जो कुछ कुछ गोल्डन गेट ब्रिज की तरह लगता है, क्योंकि वहीं से जो है वो लोग आए थे जिन्होंने इसको बनाया था। और सच में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और इस पॉइंट पे जो सी की आवाज है ना, ओ माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे फेरीज भी हैं बहुत सारी। आप यहाँ पे क्रूज का टूर भी बुक कर सकते हैं जो 2 घंटे 3 घंटे का होता है। छोटी वाली बोट्स भी हैं, बोट राइडिंग कर सकते हैं। बट सारी चीजें जो है ना वो पहले से बुक
करनी होती है, और मेरे वीज़ा के चक्कर में किसी ने कुछ बुक नहीं किया था क्योंकि सब एंड मोमेंट पे ही हुआ, बट लिटरली वी एंजॉयड अ लॉट। Leaders हैं, they'll put all the pictures. आदित्य गाने चला रहे हाँ, अच्छा चलाया उन्होंने। नहीं, पीछे वालों ने चलाया है। कॉपी कर रहे हैं अब हमको हिंदी गाने लगा के। होगी बस चिकनी चमेली नहीं लगाए। एंड द वायलिन वाज सो ब्यूटीफुल। मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करी, और अगर आप क्लिप में देखेंगे ना तो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। बट वो अद्वी का फेवरेट सॉन्ग उसी टाइम पे प्ले हो रहा था, तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी। और इसके बाद और भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है जिसमें दिखाया गया है कि वास्को द गामा कैसे जो है वो इंडिया गए थे, किस तरह से उन्होंने रूट लिया था। और ये भी एक मॉन्यूमेंट था, और ये आपने बहुत सारी मूवीज में देखा ही होगा। टू बी ऑनेस्ट, जो हमारा ये लिस्बन का टूर रहा है ना, इसमें हमें कहीं भी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप भले ही किसी शॉप पे चले जाओ, आप चाहे किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, और हमारे ये टुक टुक के गाइड ले लो, टैक्सी ड्राइवर्स, सब लोग हिंदी बोलने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेशी, इंडियन और नेपालीज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। और हमारा तो पाला ऐसा पड़ा कि हर कोई जो है वो हिंदी ही बोल रहा था, तो हमने बहुत एंजॉय किया। टुक टुक में अपना बॉलीवुड सॉन्ग 90s वाले बजा के हमने क्या मजे किए हैं ना। तो फुल ऑन मस्ती भरा हमारा ये ट्रिप रहा। इसके बाद पूरे दिन शाम का कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। लिटरली गर्मी बहुत ज्यादा थी। बीएनबी पहुंचे, फिर हम लोग समोसे वगैरह लेकर आए, और हमने समोसे और पापड़ी चाट, बालूशाही, ये सब एंजॉय किया। शाम का प्लान था कि हम लोग डिनर के लिए जाएंगे, ड्रेस व्रेस पहन के ही, सब हील्स लेके गए थे, लेकिन सबको इतनी थकान होगी, देन वी थॉट कि चलो घर ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमने इंडियन फूड ऑर्डर किया। बस वही एक ऐसा मील था जो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, क्योंकि उसमें लिटरली टेस्ट था नहीं। पर यह कि पहले समोसे और पापड़ी चाट खा ली थी ना, तो उसने कंपनसेट कर दिया था। उसके बाद फिर हमने ढेर सारी रील्स बनाई पजामाज में, हम सब ने मैचिंग पजामाज पहने थे, और उसके बाद लेट से ही हम लोग सोए। तो यस, ये था लिस्बन का डे 2। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.